سب سے پہلے بات کریں لاہور پر منکی پاکس کے بادل منڈلانے لگے۔ ایک ہی دن میں مزید 2 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں وائرس تیزی سے جڑیں پکڑنے لگا، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے لگا۔ میو اسپتال میں 40 سالہ صفیہ 45 سالہ آصف میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک مرض کے 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ منکی پاکس کا خطرہ سنگین ہو گیا۔ منکی پاکس شہر کے اندر ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہونے لگا۔ لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ میو اسپتال میں زیر علاج 40 سالہ صفیہ اور 45 سالہ محمد آصف کے لیب ٹیسٹ میں منکی پاکس میں مبتلا پائے گئے۔ منکی پاکس کیسز رپورٹ ہونے کے باوجود کسی اسپتال میں قرنطینہ وارڈ کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ تاحال منکی پاکس کے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھنے کا انتظام نہ کر سکا۔ مغربی ہواؤں نے لاہور کا رخ کر لیا۔ 31 دسمبر سے 1 جنوری تک پھر بارش کی پیشگوئی۔ شہر خشک سردی کی لپیٹ میں ہے۔ نزلہ زکام موسمی فلو عام ہو چکا۔ ہر نظر بارش کے لیے آسمان پر ٹکی ہے۔ بارش برسی تو زہریلی فضا سے بھی نجات ملے گی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 566 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں بارش کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 29 دسمبر سے 2 جنوری تک مغربی ہواؤں کی نئی لہر داخل ہوگی۔ 3 دسمبر سے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں کمی آئے گی۔ دوسری جانب شہر آج پھر فضائی آلودگی کے نرغے میں آ گیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 556 ریکارڈ کی گئی۔ مختلف علاقوں میں شرح 1000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ چمن پارک کینال روڈ میں سب سے زیادہ آلودگی کی شرح 1081 ریکارڈ کی گئی۔ کینٹ 642، برکی روڈ 571، عسکری 10 393، اقبال ٹاؤن 253 شرح آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ ڈی ایچ اے فیس 5 197، گلبرگ 2 197، ماڈل ٹاؤن اے بلاک 183، بیدیا روڈ 160 شرح ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ماہرین نے شہریوں کو خشک موسم اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان۔ کامیابی کا تناسب صرف 35.85% رہا۔ 50,085 میں سے 32,000 امیدوار فیل ہو گئے۔ نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا۔ رواں سال امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں 17,953 امیدوار کامیاب ہوئے۔ امتحان میں 32,132 امیدوار فیل ہو گئے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 35.85% رہا۔ کامیابی کا تناسب کم آنے پر کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کا کہنا تھا کہ لاہور بورڈ آئندہ سال کمپیوٹر کے پیپر کی آن سکرین مارکنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ ہر ایگزامینر کو پورا پیپر نہیں بلکہ ایک سوال چیک کرنے کی اجازت ہوگی۔ سب سے بہتر جو رزلٹ رہا ہے وہ پری میڈیکل کا ہے، اور جو رزلٹ ٹھیک نہیں رہا وہ جنرل سائنس کا ہے۔ فارملی اس رزلٹ کو ڈکلیئر کر دیں گے، اور لاہور بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بچے اس رزلٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا تھا کہ آن سکرین مارکنگ سے غلطیوں کا امکان کم ہوگا اور نتائج میں بہتری آئے گی۔ کہ جو نیکسٹ ایئر ایچ ایس سی پارٹ 1 کا پیپر ہوگا وہ ہم آن سکرین کرائیں گے کمپیوٹر سائنس کا، تو اس میں بچوں کے جو یہ چیکنگ کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں کہ ایک انویجیلیٹر کو 100 پیپر دے دیتے ہیں، وہ اپنے موڈ کے مطابق چیک کرتے ہیں۔ اب صرف بچے جو انویجیلیٹر ہے اس کو ایک کوسچن جائے گا اور 2 سے 3 منٹ میں چیک کر کے اس نے جو ہے واپس کا بھیجنا ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکیں گے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ بڑھتی مہنگائی عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی۔ چاول 380 سے 460 روپے کلو فروخت، جبکہ درجہ اول کا گھی اور آئل مزید 10 روپے مہنگا ہو گیا۔ کمپنیز نے گھی اور آئل کی قیمت 590 روپے کر دی ہے۔ ادھر مرغی کا گوشت 577 روپے کلو تک جا پہنچا۔ فارمی انڈے 330 روپے درجن پر برقرار ہیں۔ بڑھتی مہنگائی کے بعد شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اچھے معیار کے چاول 380 سے 460 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے تک جا پہنچا۔ اسی طرح درجہ اول کی ایک اور کمپنی نے بھی گھی اور آئل کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ درجہ اول کا گھی اور آئل 590 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ برائلر کے گوشت کی قیمت میں روز بروز اضافہ جاری ہے۔ دکانداروں نے سرکاری نرخ ناموں کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 577 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ بازار میں صافی گوشت 680 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ضلعی حکام کی جانب سے جاری کردہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر کا فارم ریٹ 370 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ دوسری جانب انڈوں کی قیمتیں بھی ریکارڈ
सतह पर देखी जा रही हैं। फार्मी अंडे 330 रुपए दर्जन जबकि एक पेटी की कीमत 9,780 रुपए मुकर्रर की गई। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट को तबाह कर दिया है। गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी चैलेंज बनता जा रहा है। आवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाए। एक साल में सोना 2 लाख रुपए महंगा। 2024 में सोना 2,72,600 रुपए तोला था, जबकि 2025 में सोना 4,72,800 तोला हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अब भी जारी है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक साल में सोने की कीमत 2 लाख से जायद बढ़ी। 2024 में सोना 2,72,600 रुपए तोला था, जो 2025 में बढ़कर 4,72,800 रुपए तोला हो गया। हफ्ते के रोज भी सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया। खालिश 24 कैरात सोने की कीमत बढ़कर 4,74,000 रुपए फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 4,34,500 रुपए फी तोला, जबकि 21 कैरात सोने की कीमत 4,14,750 रुपए फी तोला हो गई। सोने की कीमतों में इजाफे के बाइस जेवरात की खरीदारी मुतासिर होने लगी है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत भी बरकरार न रह सकी। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,800 रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज आज भी बरकरार है। शाम ढलते ही धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवेज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और कोशिश करें सुबह 10 से शाम 6 के दौरान सफर करें। अगर रात के औकात में सफर करना नागुज़ीर हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुख्तात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल, शहरियों की हिफाजत के लिए मोटरवे को बंद किया गया है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। इमाम मसाजिद के एजाजिया कार्ड के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच और CTD ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवा दी है। दूसरी जानिब असातिज़ा के लिए नई इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया, जबकि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नवंबर-दिसंबर के तनख्वाहों की मंजूरी दे दी गई। इमाम मसाजिद के एजाजिया कार्ड के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच और CTD ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवा दी। पंजाब हुकूमत की इमाम मस्जिद की जानिब से एजाजिया कार्ड लेने के लिए 64,546 दरख्वास्तें जमा करवाई गई। होम डिपार्टमेंट ने इमाम मसाजिद के रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच और CTD के लिए भिजवाई। CCD ने मौसूल दरख्वास्तों में से 198 को साबिका रिकॉर्ड होने की बिना पर मुस्तरद कर दिया। स्पेशल ब्रांच की जानिब से 673 दरख्वास्तों पर एतराजात लगा दिए गए। दूसरी जानिब असातिज़ा के लिए नई इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। इब्तिदाई किस्त पर ई बाइक बाकी अदायगी दायरा जाती सतह पर मुमकिन हो सकेगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने असातिज़ा को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। खवातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त स्कूटीज देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला की हिदायत पर खवातीन असातिज़ा के लिए खसूसी पैकेज तैयार किया जाएगा, जबकि तनख्वाहों के मुंतज़िर प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नवंबर-दिसंबर के तनख्वाहों की मंजूरी दे दी गई। कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी कर दिया गया। आईजी खानाजात मियां फारूक नजीर के मुताबिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। भर्ती पर बैन खत्म करने और भर्ती का अमल शुरू करने के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के लिए भिजवाई जा चुकी है। समरी मंजूर होते ही भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को माली नुकसान से बचाने के लिए दाखिला पॉलिसी तब्दील। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेंट्रल मेरिट में खाली रहने वाली सीटों पर खुद दाखिला करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 5 मेरिट लिस्टें UHS जारी करेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खाली सीटों पर दाखिला करके फहरिस्त UHS को भिजवाएंगे।
पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को माली नुकसान से बचाने के लिए दाखिला पॉलिसी तब्दील कर दी गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेरिट पर सेंट्रलाइज्ड दाखिलों में खाली रहने वाली सीटों पर खुद दाखिला करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 5 मेरिट लिस्टें UHS जारी करेगी। UHS की जानिब से 5 मेरिट लिस्टें जारी करने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खाली सीटों पर खुद दाखिला करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खाली सीटों पर दाखिला करके फहरिस्त UHS को भिजवाएंगे, जिस पर UHS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिल किए गए तलबा को रजिस्टर्ड करेगी। LD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करोड़ों की इंपोर्टेड मशीनरी खुलेआम रख दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बरामदों में रखी मशीनरी डायरेक्टरेट की नाअहली की भेंट चढ़ गई। ट्रेडमिल, रनिंग मशीन समेत दीगर कीमती सामान खुलेआम रुलने लगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया ने रेनोवेशन का काम मुकम्मल कर लिया, मगर मशीनों को ठिकाने न लगाया गया। माले मुफ्त दिले बेरहम। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करोड़ों की मशीनरी डायरेक्टरेट की नाअहली की भेंट चढ़ गई। LDA हेड ऑफिस से चंद कदम दूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बरामदों में रखी गई करोड़ों की इंपोर्टेड मशीनरी खराब होने लगी। ट्रेडमिल, रनिंग मशीन समेत दीगर कीमती सामान खराब होने लगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया ने रेनोवेशन का काम शुरू किया, जिसे मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन मशीनों को ठिकाने ना लगाया गया। आला हुकाम की नजर से बचाने के लिए मशीनों को मेन एंट्रेंस से दूसरी जानिब मेन रोड पर एक्सरसाइज मशीनें रखी गई हैं। वाज़ेह रहे कि जौहर टाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन खरीदी गई मशीनरी का ख्याल नहीं रखा गया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को आड़े हाथों लिया। कहती हैं सुहेल आफरीदी के साथ लाहौर आए लोगों ने जो गुफ्तगू की, उनके लिए मेरे पास से मुहज़्ज़ब लफ्ज़ जंगली है। कहने को बहुत कुछ है, वो पंजाब में मेहमान हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा, लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी, घटिया, शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बगैर लिस्ट के लोगों को जो है वो। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने भारतीय तिरंगा लहराने पर कबड्डी प्लेयर उबैदुल्ला राजपूत पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की मुद्दत का फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी। फ्लैटिस होटल में पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जनरल काउंसिल का इजलास चेयरमैन चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बहरीन में भारतीय क्लब की नुमाइंदगी करके तिरंगा लहराने की पादाश में उबैदुल्ला राजपूत पर पाबंदी की मंजूरी दी गई। चेयरमैन कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि उबैदुल्ला राजपूत को पाबंदी के खिलाफ अपील का हक हासिल होगा। उबैदुल्ला राजपूत का केस डिसिप्लिनरी कमेटी के सुपुर्द किया है, जो पाबंदी की मुद्दत का तयन करेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, नौलखा चर्च में इंटरफेथ इकट्ठ हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की ख़ासूसी शिरकत। डॉक्टर मजीद एबल, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड पाकिस्तान मौलाना आसिम मखदूम समेत दिगर मज़ाहिब और मसालिक के कायद शरीक हुए। नौलखा चर्च में होने वाले इंटरफेथ में खतीब, दाता दरबार मस्जिद, अलामा रमजान सियालवी, मौलाना आसिम मखदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, कासिम अली कासमी, आगा सगीर, अब्बास विर्क, भगत लाल समेत सिख कायदीन भी शरीक हुए। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब मानने वालों का मुल्क है। क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की तकरीबात में कोई एक भी शिकायत नहीं मिली। पूरा हम महीना देखें दिसंबर का, तो जिस तरह हमारी मसीही बरादरी ने अपने मुक़द्दस अय्याम क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर कहीं कोई एक शिकायत मौजूद नहीं है कि कहीं पे कोई मसला किसी किस्म का भी पैदा हुआ हो। इस मौका पर डॉक्टर मजीद एबल की सालगिरह का केक भी काटा गया, जो खतीब, दाता दरबार मस्जिद, अलामा रमजान सियालवी लाए थे। कैमरामैन उमर सलीम और मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शहर भर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया।
लाहौर हाई कोर्ट बार में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुमताज कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने खुसूसी शिरकत की। एडवोकेट राशिद शरीफ चौधरी, खुरम रजा खोखर, ज़ियाउल कमर भट्टी समेत दीगर सीनियर और जूनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के अख्ताम पर बेनजीर भुट्टो शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शहीद बेनजीर समेत दीगर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। फातिहा खानी में रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी, सेक्रेटरी इतलात पीपी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा, पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर अफजाल चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कॉस्मोपोलिटन क्लब में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग और पाकिस्तान मीडिया फाउंडेशन ने शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में कॉमरेड नजीर अहमद खान, जावेद आफ्ताब, अली राज, शौकत नाज, शमीम बट, नईम बट, शाजिया बट, खावर शाह, आसिम शुजा ने शिरकत की। मॉडल टाउन में शहीद बेनजीर भुट्टो और शहीद शफीक गोगा की 18वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीब हुई। तकरीब में शहीद बेनजीर भुट्टो, शहीद शफीक गोगा समेत दीगर शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, दुआ की गई और शमए रोशन की गई। तकरीब में कॉमरेड शाहिदात जबी, मियां अयूब, सज्जाद नजीर नून, जिशान शामी, उमर शरीफ बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। अब यहाँ पर आपको बताएं, जिमखाना क्लब इलेक्शन कमर खान बोबी रिफॉर्मर ग्रुप मैदान में आ गया। कमर खान बोबी पैनल में खुरम कुरैशी, परवेज कुरैशी, जिले इलाही, डॉक्टर शाहिद और दीगर शामिल हैं। उधर सलमान सदीक ने अपना पैनल फाइनल कर लिया। मियां मिसबाह रहमान, मियां वक्कार विक्की, डॉक्टर नजम सरदार, कासिम फारूक भी शामिल हैं। सरमत नदीम, वाजिद अजीज, परवेज भंडारा, सुमेरा नसीर, शौकत जावेद भी पैनल में शामिल हैं। जबकि अहमद नवाज सुखेरा का 4 साबिक चेयरमैन जिमखाना क्लब की हिमायत हासिल होने का दावा। लाहौर जिमखाना क्लब में सालाना इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने भाग दौड़ शुरू कर दी। सलमान सिद्दीक ने जिमखाना क्लब के इलेक्शन के लिए अपना पैनल फाइनल कर लिया। पैनल में मियां मिसबाहुर रहमान, मियां वकार विक्की, डॉक्टर नजम, सरदार कासिम फारूक, सरमद नदीम, वाजिद अजीज, परवेज भिंडारा, सुमेरा नजीर, शौकत जावेद शामिल हैं। कमर खान बोबी भी अपने पैनल के साथ मैदान में आ गए। कमर खान बोबी पैनल में कादिर लतीफ, खुरम कुरैशी, परवेज कुरैशी, जिले इलाही, डॉक्टर शाहिद और बिलाल शफीक शामिल हैं। कमर खान बोबी ने जिमखाना क्लब के पुराने रिवायती ग्रुपों को शिकस्त देने का ऐलान किया है। जिमखाना क्लब के इलेक्शन में अहमद नवाज सुखेरा ने इजारादारी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कामरान लाशारी ग्रुप को साबिक विफाकी सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा लीड करेंगे। अहमद नवाज सुखेरा को 4 साबिक चेयरमैन जिमखाना क्लब की हिमायत हासिल है। साबिक चेयरमैन जिमखाना क्लब अहमद नवाज का पैनल इलेक्शन लड़ रहा है। तस्नीम नूरानी, ज़ियाउर रहमान, कामरान लाशारी, डॉक्टर जवाद साजिद और डॉक्टर अली रजाक भी मैदान में हैं। कैसर खोखर, सिटी 42। दी पंजाब स्कूल टाउनशिप में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सालाना फन फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें किताब मेले समेत लाहौरी खाबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वालिदैन और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दी पंजाब स्कूल टाउनशिप में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फन फेयर का इनकाद किया गया। फेस्टिवल में किताब मेले और झूलों समेत लाहौरी खाबों के स्टॉल्स लगाए गए। फेस्टिवल में डायरेक्टर एकेडमिक्स दी पंजाब स्कूल डॉक्टर जिब्रान बलोच ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि फन फेयर का मकसद बच्चों को तफरीही सरगर्मियाँ फराहम करना है। इसका मकसद यही है कि बच्चों को जब पढ़ाई से वो थक जाएं तो इस तरह की चीज़ का एहतमाम किया जाए जिसमें वो अपनी फैमिलीज़ के साथ शरीक होकर कोई फ़न का एलिमेंट भी आया जाए। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जब अच्छी तरह फ़न कर लें तो उसके बाद पढ़ाई की तरफ बेहतरीन तवज्जो दें। सदर ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन असद कुरैशी का कहना था कि पंजाब स्कूल बच्चों की तालीम के साथ उनकी तफरीही सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो देता है। दी पंजाब स्कूल की रवायत रही है कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन हर साल इस तरह के ज़बरदस्त फेस्टिविटी का इनेकाद करती है ताकि अपने करंट और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त एक इवेंट का इनेकाद किया जा सके। लोग यहाँ पर आएँ, शिरकत करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।